guys, I'm live now. Welcome everyone to the We the Doctors. Let the people join. My name is Rishabh Goel and I'm a third year medical student in Ukraine in Vinnytsia National Medical. And I hope you are liking the efforts we are putting at this page in We the Doctors. And I hope that many of you know me by my live sessions at Inspiring Minds Coaching. I teach physiology there and I take regular live sessions every week. So I hope I'm adding some values in your life and I'm being beneficial to everyone. I have also made a Telegram group to discuss about physiology and pathology mainly, and rest all the subjects we can discuss. And you all, if you have any questions, any doubts regarding any subject, any topics, this page We the Doctors is only for every medicos. And my main purpose was behind this We the Doctors was not only about the studies, because medicos is not only about studies, we are also humans and we also have life apart from studies. So some fun, some enjoyment, some day-to-day vlogs and what's in the life of medical students is just I want to portray and I want to show to everyone. And I hope that in any way I can help you. And I have I think yesterday and day before yesterday as well, I asked your suggestions about on which topic I should talk about today. Hello Rohan, hi. And many of you I saw that are dealing with anxiety during the studies. You get depressed very quickly after seeing your result, after seeing your performance. In live sessions अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, you just get anxious too quickly, and before giving you a little time, you all think that we are just failures, and I don't think that's a good thing to feel about yourself. And everyone goes with this situation. It's a very normal thing to be depressed, to be hurtful when things don't go in a way you wanted. Hi everyone, hello. Please tell your friends as well to join in so that we can talk about anxiety, about stress, about depression. This is not only a thing for the medical students, for the studies regarding point of view, but in general also, like mental health is very, very much important. And sometimes we feel that anxiety is just normal, when we talk to our parents and we tell them that पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में, और we get too anxious very quickly. I think they also sometimes don't understand that anxiety can lead to some severe stages of depression, that is clinical depression. Like we usually say, ये तो बंदा depressed है, I am feeling depressed, I am feeling low. That is just a normal feeling and a normal thing which can happen to everyone, and it's actually just a hormonal imbalance. It's that your body is not producing enough feel-good hormones like endorphins and dopamines, through which you are not feeling well. But depression and severe anxiety is a very, very major issue. It's beyond just hormonal level, and it's that your body cannot now cope with that automatically. You have to consult a doctor, you have to take some medications, and then only it can help. So if you guys have anything to ask, anything to say, you can. And guys, about anxiety, I just want to say that मेरे साथ भी होता है, it's very much normal, and but I have somewhat trained my mind to not go into the stage जहाँ पर मैं anxiety की वजह से anxious होकर बहुत ज़्यादा अपने result को hamper कर दूँ. It happens every time in a day, more than 5 times in a day at least. It happens that things don't go that way which I wanted to. Like morning में उठा, I thought I will study for 5 hours today, and I didn't study. Like today was a Sunday, today was a weekend, and I thought that I will study for at least 6 to 7 hours. And honestly telling you, I have not studied even a single minute today. That's still I'm feeling that I have been a little productive today. Why? What I did, something which make me realize that yes,
Okay, Sanjana, I will talk about backlogs as well. Okay, see, I'm talking about my today's day as like एक भी मिनट पढ़ाई नहीं करनी के बावजूद भी I'm saying that I was a little productive because you know with last 2-3 days what I was dealing with, I was seeing lectures, I was studying, but after that as well, I was forgetting the things. I'm not be able to answer the questions. Okay, I think that revision की ज़रूरत है. So today I made a plan of next few weeks. Okay, so and in a way that daily उस part का revision होता रहे. Like I have given me, suppose I am reading something on Monday, I watched some lectures on Monday, I will revise that on Tuesday for sure. Anything cannot stop me for that. Even मैं आगे का नहीं पढ़ूंगा, I will read less but I will revise more. Okay, that's what I'm trying to do. And our favorite Dr. Abbas Ali, the bone teacher, everyone I hope know, he has also always said in his videos that you should not focus on reading more, you should focus on revising more, and that will lead to great success in your life. So I am just following that, and I have made my new schedule according to that only. Okay, in that way backlogs will also not be that much problem. Why? Because your priority should not be that आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, इतना सारा syllabus है. Okay, because I think you should prefer the teacher that tells you at every moment, at every topic कि कौन सा topic में कौन सा part important है. Like let's say we are discussing about the muscle contraction. Not everything in the muscle contraction is that much important. Okay, in muscle contraction the main thing that the examiner's favorite point is myosinase ATPase activity. Then what is the SERCA enzyme? Okay, so these some key points are that much important कि अगर आपको बाकी story नहीं भी याद है, you can link to that. But if आप suppose कोई point भूल भी जाते हैं, everything you should learn in a story way, so that आप कहीं पर भी अगर एक point भूलते हैं, आपको पूरा revise करने की जरूरत नहीं है. आप एक point उस एक story का एक हिस्सा याद करेंगे and every point of that story will come into your mind automatically. So that's what I follow, and that's the principle I use in my teaching style as well. I try to incorporate every day-to-day life example which I can in explaining the things to make it more simpler for all of you. And I hope that you are liking that. I am getting some response, and that only motivating me to go ahead as well, and that's why I've made my Telegram group as well. So now let's talk about how can I deal with anxiety. अगर बहुत ज़्यादा like anxious हम हो रहे हैं, why? Because I was having one doubt that I'm watching your lecture, but sometimes what happens is I don't understand that point. You have tried your best, like I have tried my best to explain that point to everyone. Everyone in the session have understood, but just one student has not understood the topic, that particular thing. But still, and now they are feeling depressed, they are feeling anxious कि अगर ये समझ नहीं आया तो सबसे important हिस्सा है. हम नेगेटिविटी को इतना ज़्यादा अपने दिमाग में बढ़ा लेते हैं that what we think is the thing which I have not understood is the most important thing in the exam. और क्या पता वो इतनी important चीज़ हो ही ना एग्जाम में. Okay, so before feeling so much anxious, before feeling so much depressed about that thing जो आपको समझ नहीं आई, it's better कि आप अपने सीनियर से पूछें. कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स को रेफर कर सकते हैं जहाँ पर आपको ये पता चले that point जो आपको समझ नहीं आया is really that important or not. Okay, and if it's not that important, not really that much important, तो इतना परेशान होने का उसमें नीड ही नहीं है. Okay, अगर वो कोई theoretical topic है सिर्फ, let's say I have gave a live session a way back, I think 15-20 days in early August about nerve injuries. We have talked about neurotemesis, neuropraxia and axonotemesis. That point is almost theoretical and less conceptual. Okay, but examiner's favorite. अगर आपको वो point नहीं समझ में आया तो you should look that examiner उसके related questions कैसे पूछ रहा है. The questions if are just theoretical, so you can when you will solve the question banks after reading everything, when you will solve the question banks, आपको चल जाएगा पता कि questions किस pattern से आ रहे हैं. It's easy for you ना. Just remember the questions, just follow the pattern in which the examiner is asking and study that way. So that's the most important tip for me, like by me or for me as well. I am also applying this thing every moment in my life, that अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, before rushing up into that, अपना ज़्यादा time waste उसमें करने से पहले, you should invest the time in that, but before that make sure कि वो चीज़ आपकी लाइफ में या उस एग्ज़ाम में या जिस भी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें it
holds some true value, some genuine value for that. Okay, just a second guys. Yeah, so going ahead, also I want to talk about social media, because सोशल मीडिया आप अभी इस लाइव सेशन के बाद या अभी भी आप सोच सकते हैं, एंड यू कैन कमेंट मी एज वेल, आपके फ़ोन में कौन कौन सी सोशल मीडिया ऐप्स हैं. वी ऑल हैव इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, स्नैपचैट एंड टिकटॉक और पता नहीं कौन कौन सी. ओके, लिंक्डइन और बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स, और हर कोई बस उनको अपने फ़ोन में डाल लेता है. ओके, एंड दैट इज़ नॉट गुड. ओके, बिकॉज वहां से आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ नेगेटिविटी मिल रही है, एंड नेगेटिव इमोशन इज द बिगेस्ट थिंग जो आपके लिए अच्छी नहीं है. ओके, नाउ ऑल्सो वन मोर थिंग guys, just a second, let me adjust my camera a little. I think my face was not appropriately clear. Okay, so going ahead, I'm saying that ये नहीं बोल रहा कि सारी सोशल मीडिया ऐप्स हटा दो एंड जस्ट डिलीट योरसेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया. यस, इफ यू आर प्लानिंग फॉर एन एग्जाम जो 6 महीने के बाद है, 6-8 महीने में, इफ यू आर प्लानिंग फॉर सम एग्जाम, I think you should delete everything. Okay, just install those apps जो आपकी productivity में help करें. Okay, otherwise it will just hamper you, and in a negative way it will hamper you. Why? Let me explain you. See, you see, like आपने अपना एक plan बनाया and you restricted that मैं diet करूँगा, no sugars. Okay, या फिर आपने plan बनाया कि मैं daily पढ़ूंगा, अब 2 महीने तक कहीं घूमने नहीं जाना है, 2 महीने अच्छे से पढ़ना है. और the next moment you are seeing your Instagram, you are checking your feed and your friend is roaming in the lake. Okay, वो तो मॉल में शॉपिंग कर रहा है. So obviously it will ruin your day, it will ruin your plan and everything. चाहे आप उसके बाद घूमने ना जाएं, लेकिन आप श्योरली उसके बाद पढ़ेंगे तो नहीं. And after the day will end, you will get anxious, you will get overloaded, you will get a backlog of studies जो आप कभी भी कवर अप नहीं कर पाएंगे. Okay, so सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि या तो सोशल मीडिया हटा दो अपने फ़ोन से, और अगर वो नहीं हो सकता, यू कैन डू एन ईजी सिंपल थिंग, रिमूव दोज पीपल फ्रॉम योर सोशल मीडिया, स्टॉप फॉलोइंग देम जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं. ओके, आई ऑलवेज फॉलो दैट, एंड दिस थिंग, टॉम फेरिस, इफ यू ऑल नो, ही इज़ अ राइटर ऑफ द 4-hour वर्क वीक ऑफ वर्ल्ड फेमस बुक, बेस्ट सेलर, एंड इन हिज बुक ही हैज़ मेंशन्ड दिस थिंग दैट ही ओनली फॉलोज दैट पीपल जो उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं. बेशक वो उसका बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन अगर उसका बेस्ट फ्रेंड इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे पोस्ट नहीं डालता जिससे उसको कुछ सीखने को मिलता है, ही डज नॉट फॉलो हिम. टिम फेरिस डज नॉट फॉलो हिज बेस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो. ओके, एंड अगर मैं अपने दोस्त को फॉलो नहीं करूँगा तो बुरा मान जाएगा, वो कहेगा मैं तेरे को अनफॉलो कर दूंगा. यहाँ पे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स और स्नैपचैट के और बाकी सबके फेसबुक के फ्रेंड्स फॉलोअर्स एक्सचेंज प्रोग्राम में चल रहे हैं कि तू मेरे को फॉलो कर, बदले में मैं तेरे को फॉलो कर रहा हूँ. आपको क्या करना है अपने इंस्टाग्राम के ज़्यादा फॉलोअर्स दिखा के? लेट्स से आपके 10,000 फॉलोअर्स हो भी गए इंस्टाग्राम पे, व्हाट यू विल डू विद दैट? आर यू इन्फ्लुएंसिंग द पीपल ऑफ द 10,000 पीपल? ओके, या तो आप अपने फॉलोअर्स लेके कुछ उनका काम कर रहे हैं, लाइक यू आर इन्फ्लुएंसिंग देम, यू आर मेकिंग सम पॉजिटिविटी इन योर लाइफ. सो सोशल मीडिया जस्ट अकॉर्डिंग टू मी, दैट्स वाई in my device I only have Instagram as a social media. I don't use any other social media platforms. I have a month or a 2 month ago Snapchat as well, Facebook as well. I have uninstalled them, and I hardly use Facebook once a month for just 5-10 minutes. But yes, Instagram I use regularly, and Telegram also I use a lot. And Telegram is more a sort of a educational platform for me. Either I am typing in my messages in my group. You can follow all on the group of Telegram, my group We the Doctors. Students put up doubts there, and we can have a discussion there. I daily put 2-3 MCQs there, so just that. And also I also follow some other educational pages on Instagram and Telegram as well. So that's what make me more productive. Okay, also just by social media, simple thing comes is your friends. Okay, you are seeing some lectures, and suppose मेरे पास जैसे iPad है, let's say आपकी कोई नोटबुक है या फिर आपके iPad में आप नोट्स बना रहे हैं उस लेक्चर के, and
you took that iPad or took your lecture notes within the class. Okay, and let's say you have a class of operative anatomy and the teacher is absent or the teacher is coming late, and you have a free time of let's say 40 minutes, and you just pull up your iPad and pull up your notes and just start reading. बगल से सारी भीड़ लग जाएगी, अच्छा क्या पढ़ रहा है ये, कहाँ से पढ़ रहा है इतना सारा, और फालतू की इतनी सारी बातें शुरू हो जाती हैं. अच्छा तू तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, क्या बात है, आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो रही है, ये करेगा वो करेगा. और इन सब चीज़ों से हम इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इतना अफेक्ट हो जाते हैं कि आज के बाद हम आईपैड नहीं लेके जाएंगे वही क्लास में, क्योंकि उसने मुझे ऐसा बोला था. हम अपने 40 मिनट और अपना 1 घंटा 1.5 घंटा बर्बाद करने को तैयार हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं सुन सकते. सो आई प्रेफर व्हाट आई डू. सॉरी अगर कोई मेरा दोस्त भी सुन रहा है तो इसके लिए, ओके, बिकॉज आई ऑलवेज डू एंड एवरीवन थिंक्स दैट ये बहुत खड़ूस है. कई लोग मुझे बोलते हैं दैट ही इज़ वेरी रूड, ही इज़ वेरी एरोगेंट, ही इज़ वेरी इंट्रोवर्ट, एंड आई एम हैप्पी बीइंग दैट. ओके, वाई? बिकॉज मेरे से कोई इंटरेक्शन उतना नहीं करता फिर. ओके, एंड आई वॉन्ट इंटरेक्शन इन माई लाइफ, बट अप टू अ लिमिट एंड अप टू द पॉइंट जहाँ पर मेरे को उनसे कुछ काम है या उनको मेरे से कुछ काम है. आई कैन हेल्प देम और आई नीड सम हेल्प फ्रॉम देम. जस्ट दैट्स इट अकॉर्डिंग टू मी. ओके, आई हैव 3-4 फ्रेंड्स एंड दैट्स इनफ फॉर मी. बाकी लोगों के लिए आई हैव ओनली दैट टाइम विच आई विल परमिट, नॉट कि जब वो मेरे को फ़ोन करेंगे, जब वो मेरे को मैसेज करेंगे, आई विल रिप्लाई टू देम क्विकली. दैट्स नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली. ओके, सो या तो आप कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव निकालो कि छुपने की ज़रूरत नहीं है. ओके, हमारी बॉडी में फालतू के स्ट्रेस हार्मोन्स क्रिएट होते हैं ये देख के कि हम जब आईपैड में पढ़ रहे हैं अपने, हम ये ज़्यादा देखेंगे कि बगल वाला हमको देख रहा है या नहीं देख रहा. हमारा तो पढ़ाई पे तो कॉन्सेंट्रेशन फिर रहा ही नहीं ना, तो वो अपने आप ही एंग्जाइटी क्रिएट करता है कि यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा. ये अननेसेसरी चीज़ें हैं जो हम अपने आप करते हैं, अपने साथ करते रहते हैं, जिससे बहुत ईजिली हम बच सकते हैं. ओके, सो आई थिंक दिस इज द मोस्ट स्टूपिडियस्ट थिंग which can happen. So guys, we have with one viewer, Samkit Jain also, and he teaches anatomy with Inspiring Minds. Samkit, will you like to join this live? I can join you. And Kaustav Bhaiya is also there. Where would you like to join? Actually today I'm talking about anxiety, and he's our senior, guys, and maybe you will have better tips to how we can deal with anxiety. Okay, we are waiting for Kaustav Bhaiya to join, and in the meantime I'm just talking about that these two things go hand in hand. That first is social media, जहाँ पर आप उन लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं शायद जिनको आप जानते भी नहीं है. ओके, इफ यू आर फॉलोइंग एनी एक्ट्रेस और एक्टर जिसको आप जानते भी नहीं है, एंड उसको आप फॉलो कर रहे हैं और उससे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि ये तो इतना मजे कर रहा है, तो इतना काम कर रहा है, सो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. ओके, एंड यस Samkit, many are demanding for you to join, and just a second. I think Samkit is not there. I think, I don't know. Okay, let's wait for Samkit to join if he will join. Okay. Yes, so guys, basically यही चीजें हैं. इसके अलावा और मैं क्या करता हूँ जिससे मैं इतना एंक्शियस नहीं होता हूँ. ओके, I don't get stressed too much. Like कल मेरे 3 पैरा हैं और तीनों के अंदर मेरा टेस्ट है, but I have not studied anything and it's not a proud thing to be. Okay, कोई खुशी की बात नहीं है कि नहीं पढ़ा है. After this live I will have my dinner and after that I will study. Yes, लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा हर लाइव सेशन में बोला है मैंने कि कॉलेज की पढ़ाई को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दो. Honestly, I am saying that if I am having 3 paras and subjects, I think path morphology,
then I have microbiology and one more subject, I think, I don't know. And in these three subjects, all three are kind of important subjects, but I will not study more than 1 or 1.5 hour maximum. I will study this. अगर कोई मॉड्यूल नहीं है तो मॉड्यूल्स हैव अ डिफरेंट स्टोरी, बट जनरल क्लास में मैं 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ता, पर टॉपिक नहीं, पर ओवरऑल डे, लाइक 3 क्लासेस हैं, सो 1 and 1.5 hour, half an hour each, you can say. That's much it. जितना उसमें हो जाएगा, बाकी नहीं होगा कोई बात नहीं. I will study for myself. I will self study, क्योंकि वही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके एंड अब क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यार क्लास के लिए भी पढ़ना जरूरी है, नहीं तो टीचर क्या बोलेगी, हमारे 3 मार्क्स आ जाएंगे, वो जो बगल में बैठा है उसके 5 नंबर आ जाएंगे. गाइस, क्या आपकी डिग्री में लिखा जाएगा कि आपके 3 आए हैं 5 आए हैं? आपके 3 या 5 आने से आपको कोई मतलब कुछ क्या बेनिफिट मिल रहा है? टेल मी. यू आर गेटिंग नथिंग फ्रॉम 3 or 5. यू आर जस्ट गेटिंग द फेक सेटिस्फैक्शन, फॉल्स होप कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो. आई एम टेलिंग एवरीवन इन दिस लाइव, अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ लेते हो ना, मंडे टू फ्राइडे, एंड सैटरडे संडे यू आर जस्ट एंजॉइंग, जस्ट चिलिंग, टच भी नहीं कर रहे हो अपनी पढ़ाई को, आपके हर क्लास में 5 नंबर आएंगे, हर क्लास में. एंड आई एम प्रॉमिसिंग दैट. और आप एकदम खुश रहोगे. ओके, यू विल फील वेरी वेरी हैप्पी. एंड आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो कितना अच्छा कर रहा हूँ क्लास में, तो सब पढ़ रहा हूँ, मेरे हर क्लास नंबर उस पर 5 आ रहे हैं. लेकिन अगर किसी बच्चे ने आपसे कोई डाउट पूछ लिया तो आपकी बत्ती गुल. ओके, तब आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉलेज की जो पढ़ाई है, आई एम स्पेसिफिकली सेइंग फॉर द यूक्रेन एंड फॉरेन ग्रेजुएट्स, नॉट फॉर द इंडिया. ओके, स्पेसिफिकली दिस पॉइंट फॉर फॉरेन ग्रेजुएट्स. कॉलेज की पढ़ाई आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए तो इनफ हो सकती है, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए, क्लिनिकल चीजें करने के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए पॉसिबल नहीं हो सकती है. ओके, बट देयर बुक्स रिक्वायर मोर देन एन आवर. ओके, Stuti, like she's saying that their books are so extensive, then avoid that books. Okay, simple as that. You don't need to, in microbiology, I can explain you, like in microbiology we have 3 materials from which you can study. There is one library book जो library से मिलती है. It's a very extensive book. Okay, one is Anant Narayan, which is a very famous classical book. Next is lectures, lecture PDF होती है, और एक होते हैं लेक्चर की प्रेजेंटेशन. सो ये 4 मटेरियल हैं फ्रॉम वेयर यू कैन स्टडी द फॉलोइंग टॉपिक, जो क्लास में आने वाला है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट क्लास. सो मेरे लिए क्लास में क्या इंपॉर्टेंट है कि मेरे 3 नंबर आ जाए, मैं पास हो जाऊं, वो टॉपिक खत्म हो जाए. ओके, दैट्स मच इज द इंपॉर्टेंस फॉर मी, और आपको भी ऐसा करना चाहिए, आई एम टेलिंग. सो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है, चारों को साथ में रखो. ये देख लो कि वो वाला टॉपिक सबसे छोटा कहाँ पे दिया हुआ है, एंड सबसे छोटा कहाँ पे दिया होता है हमेशा के लिए, हर सब्जेक्ट में, लेक्चर की PDF में, ना ही बुक में, ना ही रेफरेंस बुक में. अनंत नारायण रेफरेंस बुक जो बहुत बड़ी है. अब आप पैथोलॉजी के लिए रॉबिन्स खोल के बैठोगे तो फिर तो हो गया काम. ओके, आप सेल इंजरी पढ़ने में 4 दिन लगा दोगे आप, और टॉपिक आ रहा है सेल इंजरी, इन्फ्लेमेशन एंड प्लस इम्यूनिटी एज वेल. सो वो तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है. सो उसके लिए द बेस्ट ट्रिक इज जस्ट फॉलो द PDF, लेक्चर PDF, क्विकली स्किम थ्रू देम, हाईलाइट कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और टीचर वही पूछती है. ठीक है, कुछ टीचर ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ टीचर कम स्ट्रिक्ट होते हैं. अगर जो कम स्ट्रिक्ट है उसके में पढ़ो ना, सीधी सी बात है, मत पढ़ो. ओके, लाइक फार्माकोलॉजी, आई एम सेइंग माय टीचर इज नॉट दैट मच स्ट्रिक्ट. ओके, सो आई कैन अवॉइड फार्माकोलॉजी. लाइक मैं 15 मिनट भी एक बार रीडिंग कर लूं कि क्या आने वाला है कल के लिए, तो वो बहुत है. ठीक है, कल वो क्या पूछ सकता है, क्या हो सकता है, बाकी क्लास में देख लेंगे. इतना ना आपको. सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने क्या देखी है, मैं अपने दोस्तों को भी ये बात बोलता हूँ, तो वो कहते हैं कि तेरा बहुत तेज दिमाग हो सकता है, तू याद कर लेता होगा 10 मिनट में, बट हमसे नहीं होता. गाइज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ बिलीफ. सारी बात सेल्फ बिलीफ की है. आप अपने आप को ही मान के चल रहे हो. अब जैसे लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ, लेट्स से फिजियोलॉजी का बेसिक एग्जांपल लेते हैं, डायबिटीज का. ओके, डायबिटीज की बहुत सारी डिटेल है जो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं. ओके, एंड जब एंडोक्राइनोलॉजी आएगा तो आई विल टीच दैट ऑल्सो इन माई लाइव सेशंस, एंड मे बी इन पैथोलॉजी एज वेल इन डायबिटीज. बट डायबिटीज की कुछ बेसिक चीजें हैं कि डायबिटीज का मेन रीजन है हाइपरग्लाइसीमिया होना. डायबिटीज 2 टाइप का होता है, डायबिटीज मेलाइटस और इंसिपिडस भी होता है. ये सब तो बेसिक चीजें हैं ना, ये सब हमने 11th-12th में पढ़ी हैं. सो आपको अपना पे बिलीव करना पड़ेगा. ओके, कि आपको भी वो याद है. और ट्रस्ट मी, व्हेन आई से दीज थिंग्स टू पीपल अराउंड मी, दे से दैट तेरे को ये सब याद कैसे है, हमें तो याद ही नहीं है. गाइज, एवरीवन रिमेंबर्स दिस. किसको डायबिटीज याद नहीं होता? इंडिया में हर दूसरे बंदे को डायबिटीज है. सो इट इज दैट मच कॉमन कि हर किसी को पता है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हो कि मुझे पता है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? सेल्फ बिलीफ की ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. बिगेस्ट इशू इज दैट ओनली कि आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो खुद पे कि हाँ मेरे को आता है, हाँ मैं कर सकता हूँ. सो
एक दो क्लास में सिर्फ, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर अ वीक, 1 वीक, जितना मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से 1-1.5 घंटा सिर्फ कॉलेज के लिए पढ़ो, और बाकी टाइम आपको जो मिल रहा है, सपोज आपको पहले तो निकालना पड़ेगा गाइज। मैंने परसों ये काम किया था अपने लिए ऑन द फ्राइडे। आई मैप्ड ऑल माई क्लासेस, ऑल माई एक्स्ट्रा स्टफ, ऑल माई ऑनलाइन क्लासेस। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे लिए कितनी पढ़ाई हो सकती है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, नींद में अपने आप को अवॉइड कर देते, लाइक नींद में भी 5 घंटे पढ़ लेंगे, हो जाएगा उससे। सो नहीं होगा वो। ओके, सो नींद पूरी लो, सारे काम हटा के अब आपको दिख रहा है कि भाई मेरे पास मंडे को 6 घंटे हैं पढ़ने के लिए। ओके फाइन, गुड। 6 में से 2 घंटे निकाल दो कॉलेज के लिए, कि मेरे को कॉलेज का पढ़ना है। कितना टाइम रह गया, 4 घंटे। सो सिंपल है ना, 4 घंटे में प्लान कर लो। 4 घंटे में 2 घंटा पैथोलॉजी पढ़ना है, 2 घंटा माइक्रोबायो पढ़ना है, या जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जिस भी बुक से पढ़ना चाहते हैं, जो भी लेक्चर्स। और अच्छे बुक्स, अच्छे लेक्चर्स के लिए अब आपको सीनियर से ही रेफर करना पड़ेगा। ओके, विच ऑनलाइन लेक्चर्स आई कैन शो, संजना, which online lectures, which topic you want me to, I can explain that, I can tell that, but which topics, like in basic years, like first second years, I think Dr. Najib lectures are very good. Okay, so you can follow that. Okay, अभी कॉलेज स्टार्ट होने के बाद प्रॉब्लम हो गई है, अलग चल रहा है। ओके 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 मोहम्मद, लाइक आई कैन अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट सेकेंड ईयर में हम सब ने गलती करी और अननेसेसरी टाइम वेस्ट हुआ है। एग्जैक्टली मोहम्मद, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? मोहम्मद, डू यू माइंड इफ आई कैन join you live? Would you like to join me on the live? And that will be a much better experience for me, because मैंने आप सबसे बात सिर्फ आज तक चैट पे करी है। या तो आपने इंस्टा पे कर ली, टेलीग्राम पे कर ली, आज लाइव पे कर रहे हो, नॉर्मली वेबसाइट पे करते हो। ओके, इफ यू गाइज अलाउ मी, कैन आई इंटरेक्ट विद यू फेस टू फेस? एंड इफ रिगार्डिंग योर डाउट, अगर आपका डाउट ये है कि वो टॉपिक मिल नहीं रहा है, सो गाइज इसके लिए ना आपको 2 दिन देने पड़ेंगे अलग से। जैसे मैंने कॉलेज शुरू होने से ही पहले 2 दिन विनित्सा, जैसे आई एम स्टडिंग इन VNMU, सो मैंने कॉलेज की वेबसाइट को पूरी तरह से गो थ्रू कर लिया था कि कहाँ पे कौन सा मटेरियल अवेलेबल है। सारे मटेरियल्स को अपने आईपैड में डाउनलोड कर लिया, और अब मैंने वेरीफाई किया, चेक किया कि कहाँ पे मटेरियल सबसे कम है। ओके, शॉर्ट एंड क्रिस्प, और वो वाला मटेरियल मैंने चूज कर लिया। और उसी एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि 3 साल के एक्सपीरियंस है कि सबसे कम मटेरियल लेक्चर की PDF में ही होता है। ओके, सो जस्ट फॉलो द लेक्चर्स PDF। और उसके अलावा कुछ और डाउट है, सो यू कैन टाइप मी एंड आई कैन एक्सप्लेन यू व्हाट यू आर। ओके ओके, सो मोहम्मद विल join us, guys. हेलो भैया। हाय, हाउ आर यू? फाइन भैया, आप बताइए। बढ़िया। कैसा रहा आज का दिन, फिर वीकेंड कैसा गया? ठीक ही था भैया, बस कॉलेज का काम ही कर रहे हैं, बस अपना तो कुछ स्टडी हो ही नहीं पा रहा है। पूरा वीकेंड उसी में चला गया? एक्चुअली पता है, साथ में पीडियाट्रिक्स का मिल गया है, फिर उसके बाद इंटरनल मेडिसिन का मिल गया है, फिर पैथ फिजियो मिल गया है। और हाँ। टीचर ऐसे है कि उन्होंने सब कुछ ऐसे दे दिया है कि हम तुम्हें कुछ नहीं बता रहे, तुम्हें अपने से करना है। अच्छा, जैसे पीडियाट्रिक्स में क्या पढ़ना है? पीडियाट्रिक्स में अभी हमारा 2 टॉपिक हुआ है, एक तो नियोनेटल हुआ है। हाँ। नियोनेटल वाला। हम्म। तो अभी वो खत्म हुआ, अभी टीचर ने हमें टॉपिक नहीं बताया। ठीक है। वो टॉपिक भी उसी टाइम आता है, उसी टाइम करके उन्हें भेजना रहता है। अच्छा, लिख के भेजना होता है ना बस? हाँ, लिख के भेजना होता है, या तो वो जूम पे कॉल कर लेते हैं। ठीक तो है। 1 घंटा हमें प्रिपेयर करने के लिए देंगे, उसमें प्रिपेयर ठीक है। करो। हाँ। 1 घंटे में हम क्या ही प्रिपेयर करेंगे, हमारे उसमें कुछ गया ही नहीं। हाँ, तो ओरल, फिर मतलब ओरल हाँ, पूछते हैं ओरल। मतलब वो? ठीक और है, ठीक है। सेम ऐसे ही इंटरनल मेडिसिन में है, वो हमें भेज देंगे हाँ। PDF, फिर हमें हम्म। उसमें से पढ़ना है और फिर हमें भेजना है। ठीक है। ये दोनों तो मैनेज था कि ठीक है। फिर ऐसे ही हो हम्म। गया स्टार्ट पैथ फिजियो में। तो हम्म। पैथ फिजियो में ये हुआ कि 2 क्लासेस तो हम ऑफलाइन गए करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, उसके हमारे भी बाद ऐसे चल रहा है, कुछ क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन। हाँ, तो वो 2 चैप्टर स्टार्टिंग के जो थे, चलो वो नॉर्मल बेसिक था, हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सिया, ठीक ये है। सब हमने कर लिया। अभी स्टार्ट हुआ सेल डैमेज। तो अब हाँ। जो इनकी बुक है सेल डैमेज, वो बिल्कुल अलग है हमारी बुक से। अच्छा, जैसे मतलब कि कंटेंट अलग है? मैंने एक्चुअली मतलब पढ़ी भैया, नहीं है, इनकी कौन सी बुक है? नहीं नहीं,
एक्चुअली बात ये है कि इन्होंने सेल डैमेज के चैप्टर तो दिया, हाँ टॉपिक दिया इन्होंने सेल डैमेज का, ठीक है। उसमें क्वेश्चन हमारी वर्कबुक है, हमें वर्कबुक फिल करना है। हाँ हाँ हाँ। ये टाइम वेस्ट कराते हैं, पूरा टाइम वेस्ट ही कराते हैं। अच्छा, मतलब तुम वर्कबुक खुद भरते हो पढ़ के? हाँ, इन्होंने कहा वर्कबुक भरना है, हम उसमें साइन करेंगे, उसका मार्क्स है क्लास में 1 ठीक, मार्क्स। हाँ हाँ, जैसे फिजियोलॉजी में था, फिजियोलॉजी में भी हाँ वर्कबुक ही थी। वैसे ही सेम। अच्छा, मतलब तुमने फिजियोलॉजी में भी खुद वर्कबुक भरी है? हाँ, वो तो खुद से टीचर पढ़ के? भरवा देता था क्लास में। अच्छा अच्छा, उसके मतलब अपने से भर लो या टीचर भरवा देता था, वो डिपेंड करता है उस पर। ठीक है ठीक है। मतलब पैथो वाली कह रही है कि पहले से भर के लाओ? हाँ, मतलब टॉपिक पढ़ो, भर के लाओ, उसके 1 मार्क्स है। हम क्लास में ठीक, ओरल लेंगे, उसके 3 मार्क्स है, और एक ठीक है। कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसके 1 मार्क्स है, तो टोटल 5 मार्क्स हो गए। हाँ हाँ। तो ये है प्रॉब्लम। तो हमने तो कहा ठीक है। सीनियर्स को रेफर करो ना इस बुक्स के लिए, मैंने तो कभी बुक्स नहीं भरी आज तक। लाइक नहीं भरी, भैया, मतलब प्रॉब्लम बस फोटो खींची, मंगवाई व्हाट्सएप पे और भर दी। कुछ कुछ टीचर का ये है कि तुम्हें भरना ही भरना है। और हमने हाँ शीरीन अप्पी से भी पूछा, जो मतलब हमारी सीनियर थी, हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि यार हमजा प्रॉब्लम ये है कि इनके एग्जाम के लिए और इनके लिए तुम्हें इनकी ही बुक प्रेफर करनी पड़ेगी। हाँ हाँ। बाकी तुम ये है कि तुम अपनी बुक से जो भी है तुम उसे वीकेंड पढ़ सकते हो, या टाइम निकाल सकते हो अगर डेली उसमें, तो तुम पढ़ लो। पता नहीं यार, हो सकता है, पॉसिबल है कि टीचर्स, वही ना मैं बता रहा हूँ, जैसे एक दो टीचर्स हो सकते हैं काफी स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन अब फिजियोलॉजी में मैंने क्या देखा है कि मैं जब अपना पढ़ के जाता था फिजियोलॉजी, जो मैंने लेक्चर्स वगैरह देखे हैं या मैं पैथो वगैरह पढ़ रहा हूँ जब, तो अगर मैंने उनको कंसेप्ट समझा दिया है तो टीचर खुश है। अगर वो मेरे से एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म जान रही है और मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई स्ट्रेस होता है और इस तरीके से सेल डैमेज होता है, मैं उसको ये समझा पा रहा हूँ और वो समझ रही जी। है, तो वो बढ़िया है, वो खुश है टीचर। उसको नहीं तो चाहिए कि अगर आप भैया, मेरी बुक पढ़ो। नहीं प्रॉब्लम ये ना, अगर टॉपिक मैच होते हैं तो ठीक है। अभी ठीक जैसे है, थर्ड टॉपिक इनका सेल डैमेज है, तो इन्होंने सेल डैमेज का बस इतना पार्ट दिया, एक डेफिनेशन एपोप्टोसिस, एक ठीक है। डेफिनेशन नेक्रोसिस, नेक्रोसिस, ठीक है बस। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने कोई टॉपिक ही नहीं दिया। ठीक, तो अब उस तो फिर दो उतना पढ़ो। टॉपिक में से इन्हें कितना एक्सप्लेन करेंगे? तो टीचर उससे ज्यादा डिमांड करती है मतलब? उससे ज्यादा, ऑब्वियसली उससे ज्यादा डिमांड कर रही है, क्योंकि इनके बुक में तो और ठीक, भी सारी चीजें हैं, मतलब बहुत सारी ठीक है चीजें ठीक। हैं एक्स्ट्रा। हाँ हाँ। तो ये नहीं, प्रॉब्लम है। देखो मैंने इनकी बुक्स मतलब कौन सी जो लाइब्रेरी से मिली है वो वाली बुक, या पीडीएफ की बात कर रहे हो? लाइब्रेरी पीडीएफ सब में ऐसे ही है। सब नहीं, मैंने इनकी लाइब्रेरी वाली इतनी रेफर नहीं करी, पर पीडीएफ मैंने देखा है कि अच्छी है पीडीएफ। लाइक मटेरियल जो हम हाँ, एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। हाँ, मटेरियल तो इंटरनेट अच्छा में ऐसा रहता होगा है। ना कि ये बता देंगे कि एपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन है बिम, बिक्स और बैड, 3 प्रोटीन्स होते हैं ये, और ये एपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये डायरेक्ट लिख देंगे वो लाइन। लेकिन जब तुम रॉबिन से पढ़ोगे या लेक्चर देखोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या था, ये वाला जी। प्रोटीन कहाँ पे यूज हो रहा था। तो बस इतना सा हाँ बेनिफिट मतलब फर्क है इनकी पीडीएफ में। वो लगता है पीडीएफ पढ़ते हुए कि यार हमें ना रटना पड़ रहा है, तो वो मगिंग वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। थोड़ा सा एक दो टीचर के साथ ही होगा, और मुझे लगता है अब 2 हफ्ते हो गए हैं कॉलेज होते हुए ना, तो एक काम जो मैंने भी किया है फर्स्ट सेकंड ईयर में, तो कि एक दिन दे दिया, जैसे तुम मंडे और ट्यूसडे अपने लिए फ्री रख सकते हो, उसके अंदर ना सारे टीचर्स का एनालाइज तुम कर चुके हो कि भाई सारे टीचर मेरे साथ किस तरीके से हैं। जैसे पीडियाट्रिक्स वाला शायद होगा कि लीनियंट होगा, फार्मा वाला होगा स्ट्रिक्ट होगा, तो तुम उसके अकॉर्डिंग टाइम अपना बांध सकते हो कि अगर इंटरनल मेडिसिन वाली ज्यादा पूछती है तो उसके लिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, वो मजबूरी है। तो ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़ लेंगे उसके लिए ज्यादा, तो आधा घंटा कहीं और जी। मैनेज करना पड़ेगा। तो आई थिंक हिज कनेक्शन इज या आवाज आ रही है मेरी? बहुत स्लो आ रही है, मैं लीव करता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। ओके गाइस, तो हमजा ने जैसे बताया कि वही ना कि कुछ टीचर्स बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ टीचर्स का है कि हाँ इजी है, और वो इतने लाइक डाउट्स नहीं है, इतने प्रॉब्लम नहीं आती उसमें, कि मटेरियल कम दे रखा है क्लास के अंदर और हमें पढ़ना ज्यादा पड़ रहा है। तो वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई उन्होंने एपोप्टोसिस के बारे में 2 लाइन रखी है, इट इज अ प्रोग्राम सेल डेथ, कैन हैपन इन फिजियोलॉजी, कैन हैपन इन पैथोलॉजी, बस। अब वो पूछ लेंगे क्लास में इसके टाइप्स बताओ, इसके एग्जाम्पल बताओ, अब वो तो हमने मटेरियल में से पढ़े ही नहीं है। और अगर हम उसके लिए रॉबिन्स खोलते हैं तो रॉबिन्स बहुत एक्सटेंसिव बुक हो जाती है। ओके, सो गाइस इसके लिए ना 2-3 बुक्स मैनेज करनी पड़ेंगी, वो थोड़ा सा एक टीडियस टास्क है, लेकिन एक कॉपी में एक जगह लिख लो कि पैथोलॉजी के लिए मेरी बुक जो है, लाइक मैंने अपने आईपैड में 2 अलग सेक्शन बना रखे हैं कि ये वाला है सिर्फ मेरा सेक्शन जहां पर मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ, और ये है सारा फालतू जो कॉलेज के लिए है। उसके अंदर मैंने वो बुक यूज करी है, वो बुक डाली हुई है उस फोल्डर्स में जो सिर्फ कॉलेज में के लिए पढ़नी है मुझे, उसके अलावा वो मैं बुक नहीं पढ़ता। और रॉबिन्स, सपोज लेट्स एग्जांपल फॉर पैथोलॉजी, रॉबिन्स
मेरे उस सेक्शन में नहीं आएगी, क्योंकि अगर मैं रॉबिन्स खोलूंगा कॉलेज में सेल इंजरी पढ़ने के लिए तो बहुत एक्सटेंसिव हो जाएगा और शायद समझ भी ना आए सारा। ठीक है, तो कुछ ऐसा ढूंढो, कोई ऐसी बुक जो शॉर्ट एंड क्रिस्प हो। और बेस्ट बुक्स कौन सी होती हैं शॉर्ट एंड क्रिस्प? रिव्यू बुक्स। जैसे पैथोलॉजी के लिए आई थिंक गोविंद राय गर्ग एंड स्पर्श गुप्ता की बुक आती है। इट इज अ रिव्यू बुक जहां पे एपोप्टोसिस के बारे में एक पेज में पूरी डिटेल मिल जाएगी। ओके, अब आप गलती क्या करते हो, जैसे मेरे को हमजा की बात से थोड़ा सा समझ में आया, और ये गलती बहुत कॉमन है कि ना, अगर चलो हम एपोप्टोसिस पढ़ रहे हैं, कल मैम ने एपोप्टोसिस पूछना है हमसे, एंड वी आर स्टडिंग सेल इंजरी एपोप्टोसिस एंड वी आर रीडिंग इट फ्रॉम सम रिव्यू बुक। एक पेज में उसमें एपोप्टोसिस के बारे में पूरी डिटेल दे रखी है। वी विल ट्राई कि मुझे एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। गाइज, अभी जब आप एपोप्टोसिस अपने आप से पढ़ोगे, अब रॉबिन से पढ़ोगे, किसी लेक्चर से पढ़ोगे, तो वहां पे समझ आएगा ना। जो टीचर आपको पढ़ाएगा वो उसकी ड्यूटी है कि वो आपको समझाए। ओके फाइन। अगर आप साथ साथ पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आप सिर्फ कॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो आपका काम सिर्फ उस टाइम के लिए लर्निंग होना चाहिए। उसको इतना फोकस मत बनाओ कि मेरे को समझना ही है, और अगर हर चीज को समझने में घुसोगे तो फिर तो टाइम लगेगा ऑब्वियसली, बिकॉज एपोप्टोसिस इज अ 2 hour टॉपिक। अगर मैं एक लेक्चर में एपोप्टोसिस पढ़ाना चाहूँ तो मेरे को आराम से 1.5 घंटा चाहिए, इतना एक्सटेंसिव टॉपिक है। सो अगर मेरे को पढ़ाने के लिए 1.5 घंटा चाहिए तो आपको पढ़ने के लिए मतलब 4 घंटे चाहिए ना उसको। तो इसलिए अगर आप सिर्फ उस मटेरियल को कॉलेज से पढ़ रहे हो एंड दैट मटेरियल इज नॉट अवेलेबल इन योर पीडीएफ एंड यू आर रेफरिंग टू सम अदर बुक्स लाइक रॉबिन्स, लाइक सम एल्स, मेरे लिए बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया जैसे कि रिव्यू बुक्स है। ओके, सो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज क्या होती है? सबसे बेस्ट चीज यही है कि आप रेफर करो उन बुक्स को शॉर्ट एंड क्रिस्प टाइम के लिए, उस टाइम के लिए, और बढ़िया। ओके, सो ये समझा। आई फेल्ट फ्रॉम योर थिंग कि आप क्या मेजर गलती क्या है, और मैंने तो खूब करी है ये वाली गलती, स्पेशली एनाटॉमी में फर्स्ट ईयर के अंदर, कि उन्होंने बोला कि ना सर्कल ऑफ विलीज पढ़ के आ जाना। सर्कल ऑफ विलीज के लिए मैंने यहाँ की बुक रेफर करी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। ओके, तो फिर मैं कैसे कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था? मैंने सर्कल ऑफ विलीज का निंजा नर्ड, हर कोई जानता होगा निंजा नर्ड को, एंड निंजा नर्ड की मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, उसने सर्कल ऑफ विलीज इतने प्यारे से समझाया कि मजा आ गया। उसके बाद मैंने डॉक्टर नजीब का भी देखा, ही इज द गॉड ऑफ न्यूरो एनाटॉमी फॉर मी। ओके, उन्होंने और ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद जब मैंने कॉलेज की बुक पढ़ी तो मुझे लगा अरे हाँ, ये सब पॉइंट्स उन्होंने कवर किए थे, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेकिन सिर्फ एक सर्कल ऑफ विलीज को पढ़ने में मेरे 3.5 घंटे वेस्ट हो गए। क्या वो वर्थ इट था? 3.5 घंटे में से मैं आधा घंटा सिर्फ सर्कल ऑफ विलीज पढ़ता, 3 घंटा अपना कुछ पढ़ता। अब बच्चों का डाउट आता है कि अगर 3.5 घंटे सर्कल ऑफ विलीज में लगा ही दिए तो इसका मतलब तुम्हारे भी तो काम आएगा ना। लेकिन गाइज, वो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर नहीं रहता। कभी तुमने सर्कल ऑफ विलीज पढ़ लिया, कभी तुम ब्रेन पढ़ नहीं रहे हो। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पता होनी चाहिए पहले, उसके लिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहां से आई वो पता होना चाहिए। क्या तुमने एओर्टा की ब्रांचेस पूरा बेसिक से शुरुआत करी थी पढ़ने से कि तुम सर्कल ऑफ विलीज तक सीधा पहुंच गए? हम ये गलती करते हैं, सिस्टमैटिक चलना है। सिस्टमैटिक आप उसी जगह चल पाओगे या तो किसी लेक्चर को फॉलो कर रहे हो या किसी बुक को रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो अपनी पढ़ाई के लिए। सबसे पहले मेरी सबसे प्रो टिप जो मैं यूज करता हूँ, और अकॉर्डिंग टू मी अगर आप वो फॉलो कर रहे हो ना, तो एक सिस्टमैटिक तो बिल्कुल हो गई लाइफ। और अगर सिस्टमैटिक नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो सिस्टम क्या है? अपनी पढ़ाई को 2 हिस्सों में बिल्कुल क्लियरली बांट लो। ये है कॉलेज की पढ़ाई, ये है मेरी पढ़ाई। मेरी पढ़ाई का मतलब है कि मैं पढ़ूंगा। अगर आपके कॉलेज में एपोप्टोसिस टॉपिक कल के लिए है और क्या आपने वो अपनी बुक से पढ़ा है, अपनी बुक यानी रॉबिन्स, अपना लेक्चर यानी जो आप लेक्चर फॉलो कर रहे हो, तब वो टॉपिक आपकी लिस्ट में कंप्लीट होगा। कॉलेज की लिस्ट में बेशक कंप्लीट हो गया हो, आपकी लिस्ट में भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, सो कॉलेज की लिस्ट में कंप्लीट करने के लिए क्या है? शॉर्ट एंड क्रिस्प में पढ़ना है, ज्यादा टाइम लगाना नहीं है। गो फॉर द रिव्यू बुक्स। ओके, रिव्यू बुक्स अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा सारी रिव्यू बुक्स की जो मेजॉरिटी मेरे पास अवेलेबल है। ओके, मेरे आईपैड में है वो बुक्स, और आप मेरे को टेलीग्राम पे एक बार मैसेज कर देना, आई विल सेंड एवरी पीडीएफ फॉर द एवरी रिव्यू बुक पॉसिबल एंड दैट विल श्योरली हेल्प यू। ये वाली चीज करके देखो 2 हफ्तों के लिए, एंड नेक्स्ट लाइव में ना आई एम प्रॉमिसिंग यू कि आप मेरे को कहोगे कि ये वाली चीज बेनिफिट करी। आज संडे है, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट संडे एंड फॉर नेक्स्ट लाइक कल ही का टॉपिक है मंडे टू फ्राइडे। बहुत काम आएगी आपकी ये वाली टिप। अपनी लिस्ट 2 हिस्सों में क्लियरली बांट लो कि ये मेरी अपनी पढ़ाई है, ये मेरी कॉलेज की पढ़ाई है। ओके, अगर वो एपोप्टोसिस टॉपिक आपने अभी अपने लिए नहीं रखा है, अभी आपका सपोज लाइक एपोप्टोसिस तो वैसे भी पैथोलॉजी में शुरू में आता है, लेकिन अभी पैथोलॉजी पहुंचे ही नहीं हो, अभी आप माइक्रोबायोलॉजी खत्म कर रहे हो, तो नो प्रॉब्लम, स्टडी माइक्रोबायोलॉजी एंड इट डिटेल के अंदर। जब आप पैथोलॉजी में पहुंचोगे तब हम वापस से एपोप्टोसिस पढ़ेंगे, वापस से हम लेक्चर देखेंगे, वापस से हम रॉबिन्स पढ़ेंगे।
ओके लेकिन अभी हमको सिर्फ एपोप्टोसिस क्लास के लिए खत्म करना है। टीचर को तो नहीं बोलेंगे ना अभी मैंने नहीं पढ़ा तो तू मेरे से क्वेश्चन मत पूछ, ऑब्वियसली। सो वो तो क्वेश्चन पूछेंगे। सो उसके लिए सबसे सिंपल चीज क्या है कि उनकी बुक्स फॉलो करना ये मेरे को थोड़ा सा स्टुपिडिटी लगती है। मैंने कभी नहीं फॉलो करी है। सो और मैं ना आगे फॉलो करने वाला हूँ, सीधी सी बात है। ओके बिकॉज मैंने ये देखा है कि टीचर्स को ये नहीं है कि जो उनकी किताब में लिखा है वर्ड टू वर्ड चाहिए। दे जस्ट वांट कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया क्या। अगर वो अच्छा टीचर है तो वो कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम करता है। आप रिव्यू बुक से पढ़ोगे, आपको रिव्यू बुक में एपोप्टोसिस की एक एक डिटेल बेशक ना समझ आए, आपको नहीं समझ में आएगा कि एपोप्टोसिस ब्रेस्ट डेवलपमेंट में भी हो सकता है। सो आपको नहीं समझ में आएगा कि एपोप्टोसिस मसल ग्रोथ में भी हो सकता है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, उस टाइम के लिए एग्जाम्पल उसको लर्न कर लो, डेफिनेशन याद कर लो, कुछ तो समझ में आएगा ना कि आप टीचर को 3 नंबर जितना तक एक्सप्लेन कर सकते होगे। मैंने पहले ही बोला कि प्रायोरिटी इज 3 मार्क्स। 3 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन जब एपोप्टोसिस अपने लेक्चर से पढ़ेंगे, रॉबिन से पढ़ेंगे, तो आ जाएगा समझ में पूरा। तब ये भी समझ में आएगा कि उसके एग्जाम्पल क्यों हैं, कि क्यों वहां पे एपोप्टोसिस होता है। तब हम डिटेल में बात कर लेंगे उस चीज की। आई होप मेरी बात कुछ समझ में आई और ये टिप हेल्प करेगी। ये बहुत ही कॉमन चीज है ये वाली। एंड इट्स गुड कि हमजा ऑनलाइन आया मेरे साथ और उसने वाला डिस्कस किया, वरना ये वाला पॉइंट डिस्कस नहीं होता आज। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। और guys, something else you want to say? Yeah, surely everyone is requesting. I will send the PDFs on Telegram. Just कोई एक बच्चा Telegram पे मैसेज कर देना after the live कि send the PDF of the review books and I will surely send. Okay, no problem. And guys, एक लास्ट टिप जो मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में एंजाइटी के लिए, वो हम ये कर सकते हैं कि टॉक टू योर पेरेंट्स। ओके, डू नॉट टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट स्टडीज, क्योंकि शायद आपके पेरेंट्स डॉक्टर ना हो, टीचर ना हो, या इतने पढ़े लिखे ना हो। ओके, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ माई पेरेंट्स। दे आर नॉट दैट एजुकेटेड कि वो मेरे को पढ़ाई के बारे में उतनी सलाह दे सके कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। लेकिन आपके पेरेंट्स आपको एक चीज के बारे में जरूर बता सकते हैं जो उनसे बेहतर किसी ने नहीं करी। ओके, कौन सी? हार्डवर्क कैसे करना है। योर पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स फॉर यू टू लर्न कि आपको हार्डवर्क कैसे करना है। हार्डवर्क आपके पापा से अच्छा आपको कोई नहीं सिखा सकता। ओके, सो ये आप पेरेंट्स आपके हर चीज में, लाइक आई टॉक टू माई मॉम एवरी डे। एटलीस्ट अगर मैं बहुत बिजी भी हूं, मेरा दिन बहुत ही बिजी जा रहा है कि मेरे 4 पैराज हैं। वेडनेसडे इज अ डे मोस्ट हेक्टिक फॉर मी, इट हैज 4 पैराज। आफ्टर दैट आई हैव टू मेक डिनर, आफ्टर दैट आई हैव टू स्टडी फॉर द नेक्स्ट डे, देन सेल्फ स्टडी, एंड देन ऑनलाइन क्लास होती है मेरी, लाइव क्लास। सो मेरे पास तो जैम पैक डे है, वो टाइम ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपनी मम्मी से 5 मिनट जरूर बात करता हूँ, एटलीस्ट फॉर द सेक कि मुझे कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी। और कभी कभी आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है। सो पेरेंट्स से तो आर्ग्यूमेंट भी होगा ना, बिकॉज दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। सो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही डिसेंट सा बच्चा हूँ और बड़ी अच्छी बातें होती है। नहीं, हर माँ बाप के साथ आप भी जब बात करते होंगे तो वो हो जाता है, वो चलता रहता है। सो आई होप दैट आई एम मेकिंग सम सेंस। पेरेंट्स से बात करने से ना हमेशा एक पॉजिटिव वाइब मिलती है और वो आपको बताते हैं, जैसे कि आप घर से हम इतना दूर हैं, आज घर में ये बना है, तूने क्या बनाया घर में। सो वो ना फॉर सम मोमेंट, एटलीस्ट उस टाइम के लिए जब आप बात कर रहे हैं, वो ध्यान हटा देता है वहां से। ओके, सो वो मजाक मस्ती होती है जब फोन पे फैमिली के साथ, तो आपका ध्यान उस बैकलॉग पे नहीं रहता, आपका ध्यान उस चीज पे नहीं रहता यार मुझे एपोप्टोसिस समझ नहीं आया। आपका ध्यान सिर्फ होता है कि यार अभी मम्मी से बात कर रहा हूँ, वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ। शायद बहुत सारे बच्चे, जैसे मेरे को ये साल जाने का था, हम नहीं जा पाए ड्यू टू कोविड। सो इस टाइम पे अगर वीडियो कॉल मिल जाए मम्मी से बात करने को, तो और उससे बड़ी क्या चीज है, यही वाली चीज है। ओके, सो डू दैट। सो इन समरी आई कैन फॉर द एंजाइटी आई कैन से जस्ट 4 पॉइंट्स। पहला तो पॉइंट है, नेगेटिव थॉट्स को मत आने दो, बिकॉज नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो आपका सेल्फ बिलीफ खत्म हो जाएगा। आप नेगेटिव थॉट्स के बारे में इतना घुस जाओगे कि आप सेल्फ बिलीफ को सोच ही नहीं पाओगे। अगर आपको डायबिटीज आता भी होगा ना, अगर मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप अभी आंसर दे दोगे, लेकिन कल मैं आपको कहूं डायबिटीज एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। वाई? आप आंसर दे सकते हो अगर उस चीज का, तो वाई यू कैन नॉट एक्सप्लेन दैट थिंग। ऑलवेज बिकम द टीचर, ऑलवेज बिकम द टीचर। आइदर टीच योर सेल्फ, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, उसको पढ़ाओ, दीवार को पढ़ाओ, पेड़ को पढ़ा लो। ओके, आपके घर में फोटो फ्रेम है, उसको पढ़ा लो, अपने लैपटॉप को, अपने मोबाइल को। बेस्ट एग्जांपल, अपनी मम्मी को पढ़ाओ। मैंने हमेशा अपनी मम्मी को पढ़ाया है, चाहे उनको समझ में आ रही है चाहे नहीं आ रही है। ओके,
उनका काम होता है हाँ ना बोलना फोन पे, मेरा काम होता है पूरी डिटेल समझाना। इससे क्या होता है कि मेरे को अपने लूप होल्स पता चलते हैं, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। सो इससे सेल्फ बिलीफ क्रिएट होगा और उससे फिर नेगेटिव चीजें नहीं आएंगी, यार मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। सेकंड पॉइंट, अगर वो चीज आपको समझ नहीं आई है, बिफोर रशिंग इनटू इट, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, अपने टीचर को मैसेज कर दिया सर ये मुझे समझ नहीं आया जल्दी समझाओ, इससे पहले है शांत हो जाओ, उस डाउट को एक जगह पे लिखा, उससे रिलेटेड अब जब भी फ्री टाइम हो, ऐसा नहीं है कि सारे काम छोड़ के वो काम करना है, वो काम करना है फ्री टाइम में, जब आप टीवी देख रहे हो, जब आप वी ऑलवेज मेरा कैसा है कि मैं 2 घंटे का ब्रेक लेता हूँ, उसके अंदर खाना बनाना और सीरीज देखता हूँ और साथ में खाना खाता हूँ, उसके बाद भी आधा घंटा रहता है फ्री, उसके अंदर यू कैन स्क्रॉल योर इंस्टा, यू कैन गो टू योर सोशल मीडिया, और उसमें आप उस डाउट को देख सकते हो कि वो कितना फ्रीक्वेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी टॉपिक डाल दो, सपोज आपको ग्लूकोन्यूजेनेसिस समझ नहीं आया, यू कैन ऑलवेज टाइप हाउ मच इंपॉर्टेंट इज ग्लूकोन्यूजेनेसिस और ग्लूकोन्यूजेनेसिस रीसेंट एग्जाम क्वेश्चंस, तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरीके से पूछा जा रहा है। अगर वो थ्योरेटिकल टॉपिक है सिर्फ, तो आपको इतना ध्यान उस पर नहीं देना। हाँ, कंसेप्चुअलाइज्ड है तो गो फॉर दी कॉन्सेप्ट्स, ओके। लेकिन मेरे ख्याल मेरे सभी स्टूडेंट्स अभी 3rd ईयर तक ही हैं, उससे ऊपर का तो कोई नहीं है, आपके पास तो बहुत टाइम है अभी। सो आप तो किसी भी चीज को नहीं छोड़ोगे ये सोच के कि ये सिर्फ थियोरेटिकल वाली है तो हमको नहीं समझनी, आपको हर चीज समझनी है, पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में समझनी है, ओके। जहां पर टीचर कह रहे हैं कि अननेसेसरी डिटेल है आगे आ जाएगी, सो बिलीव हिम एंड गो अहेड, बट बिफोर दैट करनी है। थर्ड टिप, सोशल मीडिया और फ्रेंड्स दोनों साथ में चलते हैं। सोशल मीडिया कि भाई फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस करेंगे, और फ्रेंड्स वाला कि कॉलेज में जा रहे हैं अपना मटेरियल लेके जाओ, अपने आईपैड से पढ़ो, क्लास के सामने पढ़ो, कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ओके। आई ऑलवेज डू वन थिंग, आई पुट माई एयरपॉड्स ऑन, म्यूजिक चल रहा है उसके अंदर, एम्बिएंट साउंड्स हैं और मैं अपना पढ़ रहा हूँ। नहीं भी पढ़ रहा हूँ तो जरूरी है क्या हमेशा बात करनी, हमेशा गप्पे मारने? यू कैन सिट अलोन फॉर सम टाइम, गिव योरसेल्फ सम टाइम, ओके। एंड चौथी टिप है कि टॉक टू योर पेरेंट्स, द बेस्ट टिप आई कैन से। ये सब सबसे इजी चीजें हो सकती है जिससे एंजाइटी थोड़ा सा रिलैक्स हो सकती है। इसके बाद कभी आप फ्री टाइम है तो आप यूट्यूब में कुछ देख लिया, अपनी हॉबी, सपोज किसी को गाना पसंद है, किसी को खाना बनाना पसंद है, थोड़ा बहुत फन तो ऑब्वियसली यू हैव टू डू, तभी हो पाएगा कोप अप। आई थिंक आज के लिए बहुत है इतना, और आई थिंक आई हैव एडेड सम पॉइंट्स जिससे आपको बेनिफिट मिलेंगे, and I'm very glad, I'm very thankful to all of you to join today, and Hamza, I'm really grateful for you कि join किया और इतनी अच्छी प्रॉब्लम शेयर की, जिससे आई होप मैं एक वैल्यूएबल, एक सेंसफुल सॉल्यूशन दे पाया हूँ उस टिप का, ओके। लेकिन वो किसी काम की नहीं है जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। सो आई कैन डू वन थिंग दैट आई विल शेयर द PDFs। और हम क्या करते हैं ना, अच्छा एक चीज और मैंने क्या देखी है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स में कि उन्होंने बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुप बना रखे हैं, गूगल ड्राइव पे और पता नहीं क्या क्या, कोई बुक कहीं पर है, कोई बुक कहीं पर है। प्लीज गाइस, सिस्टमैटिक एक फोल्डर बना पैथोलॉजी का, पैथोलॉजी में भी गाइस मैं आपको किसी दिन मेरी अरेंजमेंट दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से अपना ऑर्गेनाइज कर रखा है आईपैड में सब कुछ, फोल्डर के अंदर फोल्डर्स है, हायरार्की सिस्टम में मैंने ऑर्गेनाइज है। लाइक पैथोलॉजी में, पैथोलॉजी हैज 2 पार्ट्स, मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, पैथ मॉर्फो, पैथ फिजियो। देन पैथ फिजियो में भी, पैथ फिजियो की PDFs अलग है, लेक्चर्स अलग है, उसका वर्क प्लान अलग है, उसके अलग बुक्स अलग हैं उसकी, तो पूरा ऑर्गेनाइज करके रखो उसको और तब बढ़ो आगे, ओके। एंड हमजा ने एक चीज और बताई कि टीचर ने पॉइंट बताया नहीं कि अगली क्लास में पढ़ना क्या है। सो हमजा, इसके लिए भी टीचर की गलती नहीं है, आई विल से आपकी गलती है, बिकॉज आपकी वेबसाइट पे प्लान दे रखा है, देयर इज अ थीमेटिक प्लान करके होता है वेबसाइट पे, उसके अंदर डेट वाइज, टॉपिक वाइज लिखा है कि फर्स्ट क्लास का टॉपिक ये होता है, सेकंड का ये, थर्ड का ये। तो टीचर इज एक्सपेक्टिंग यू कि आप उसको डाउनलोड करेंगे, उसको पढ़ेंगे और आपको पता होगा कि अगली क्लास में क्या पढ़ना है। सो आप पहले से उसको पढ़ के रखो ना, डू नॉट डिपेंड ऑन टीचर। अगर टीचर आपको तुरंत बताएगा तो आपको तुरंत पढ़ना पड़ेगा और वो अनसर्टेनिटी लेके आएगा, अरे यार मेरे को तो काम करना था, मैम ने टॉपिक दे दिया, ऑब्वियसली इट विल लीड टू एंजाइटी। सो वो क्यों करना है वो वाला काम, ओके। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मैंने कॉलेज शुरू होने से 2 दिन अपने आप को दिए थे पहले और सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर ली थी। सो आप भी अभी नहीं किया कॉलेज शुरू होने से पहले, अब शुरू हो चुके हैं, नो प्रॉब्लम, अब करो वो चीज और हमेशा उसको फॉलो करो, ओके। बिकॉज प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपना एक प्रॉपर 2 दिन दो, अपने आप को एक प्रॉपर प्लान बनाओ, मैप आउट कि किस दिन आपके पास कितना टाइम है, ठीक है। सारा वेबसाइट को स्क्रॉल कर दो, कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा एक वेबसाइट को पूरा स्क्रॉल करने में, फिर उसको ऑर्गेनाइज करने में कुछ टाइम लगेगा। ऑर्गेनाइज एवरीथिंग और इट विल बी मच ईजियर, क्योंकि चीजें एकदम ऑर्गेनाइज रहती है ना, तो ऑब्वियसली वहां पढ़ने का भी मन करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और हर चीज सिस्टमैटिक दिखती है तो भाई अच्छे साफ एनवायरनमेंट में पढ़ने का मन करता है ना, बैठने का मन करता है।
So I think that is it for today. I think I've talked much today. Okay, and thank you everyone to join me today, and I hope I have added some values in your life today. और कुछ स्पेशल बातें पता चली होंगी, कुछ प्रो टिप्स मिली होंगी जिससे यू कैन इम्प्लीमेंट दैट इन योर लाइफ एंड कैन have some improvement. And I will surely, please remind me on Telegram group to send me the PDFs. I will send the PDFs, okay, and you can find those in file section or वैसे भी मिल जाएंगी chats में, okay. And also please tell your friends as well for that Telegram group, for this Insta page, because ये मैंने अपने लिए नहीं बनाया कि मेरे को अपनी social presence दिखानी है सबको कि मैं कितना socially active हूँ. मैं हूँ ही नहीं socially active, मुझे रहना ही नहीं. Okay, this page, that Telegram group is just for the community, कि हम community को एक साथ कैसे build up कर सकते हैं. Because मैंने ये देखा है पिछले 2 महीने में कि अगर मेरे पास कोई डाउट आता है, हर बार मेरे पास उसका आंसर नहीं होता, मुझे अपने नोट्स में जाना पड़ता है, हर बार मुझे वो चीज याद नहीं होती. I have to refer to my notes. I understand that and explain you in a better way. So हमेशा आपके साथ भी होगा वो. So जब आपके पास भी दूसरों के डाउट्स आएंगे तो आप उसको ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, आपकी एनालिटिकल पावर बढ़ेगी, सोचने की पावर बढ़ेगी, एंड दैट विल ऑब्वियसली लीड यू टू द स्टार्स. सो आई होप दिस लाइव had some value for you, and good night everyone. Bye bye, and we will meet on next Sunday with next live, I hope for the same time, okay, and we will choose the topic on Friday or Saturday next week as well, okay. Bye bye everyone and good night.